السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز 9 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی۔ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے عوام کی صورتحال کے حوالے سے کہ عوام موجودہ حالات کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے۔ حکومت اب بات کر رہی ہے کہ 14 اگست تک جو نیشنل اسمبلی ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی، اس کے بعد نگران سیٹ اپ آئے گا، نگران سیٹ اپ کے بعد الیکشن کا انعقاد ہوگا۔ اور آج وفاقی وزیر داخلہ رانا سنولا نے بھی پریس کانفرنس کی اور کہا کہ پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون تمام حلقوں سے اپنے امیدواروں کو لے کے آئے گی۔ تو لگ ایسے رہا ہے کہ اب جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ الیکشن کے انتظار میں ہیں اور الیکشن کے لیے تیار دکھائی دے رہی ہیں۔ تو آج ہم عوام سے بات کریں گے کہ اب حکومت کے پاس 1 مہینے کا ٹائم پیریڈ ہے، تو اس 1 مہینے میں عوام کے لیے ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ عوام کو کچھ حد تک ریلیف مل سکے۔ جو جب عدم اعتماد سے پہلے حکومت چل رہی تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کی تھی، اس پر بھی لوگوں کو کافی زیادہ کنسرن تھا کہ مہنگائی پر کنٹرول نہیں پایا گیا، IMF کے معاہدوں کو پورا نہیں کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ پھر PDM کی حکومت آئی، PDM کی حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کا اعلان کیا۔ جب حکومت سنبھالی تو کہا کہ خزانہ خالی ہے اور معیشت جو ہے وہ زبوں حال ہے، ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچا ہوا ہے۔ اس کو بہتر سمت میں لانے کے لیے حکومت نے عوام پر ٹیکسز کا مزید بول ڈالا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی کا جن تھا وہ بے قابو ہوتا ہوا دکھائی دیتا رہا۔ اب حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اب ہم نے جو 1 سال سوا سال کا ٹائم پیریڈ مشکل گزارا، اب وہ مشکل ٹائم گزر گیا ہے، اب عوام کو ریلیف دینے کا ٹائم آ گیا ہے اور آنے والے دنوں میں عوام کو مزید ریلیف دیا جائے گا۔ لیکن یہ ٹائم اس وقت آیا ہے جب حکومت کے پاس صرف 1 مہینہ رہ گیا ہے۔ تو آج ہم اس حوالے سے عوام سے بات کریں گے، عوام سے جانیں گے کہ انہیں کتنی توقع ہے حکومت سے، اور اگر نگران سیٹ اپ کے بعد الیکشن کا انعقاد ہوتا ہے تو عوام اپنے جو ووٹ کا استعمال ہے وہ کس طرح سے کرے گی اور عوام کو ہماری سیاسی جماعتوں سے کس حد تک توقعات ہیں۔ یہ سارے سوالات لے کر ہم عوام کے پاس جائیں گے۔ ہم اس وقت موجود ہیں ڈبل فاٹک چوک پر اور جہاں پر کوشش کریں گے کہ لوگوں سے بات کر لیں، ان سے جان سکیں۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ۔ آج بات کریں حکومت کے حوالے سے۔ حکومت وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اب 1 مہینہ ہمارے پاس ہے، 14 اگست کو اسمبلی ختم ہو جائے گی، پھر الیکشن ہوں گے آگے۔ تو کیا سمجھتے ہیں حکومت 1 مہینے میں ایسا کیا کرے کہ عوام کو کوئی ریلیف مل جائے؟ جو بھی حکومت آتی ہے عوام کو کبھی ریلیف نہیں ملتا۔ ریلیف ہمیشہ حکومت کے لیے ہوتا ہے، ہمیشہ وزراء کے لیے ہوتا ہے، عوام کے لیے کبھی کوئی ریلیف نہیں ہوتا۔ اتنے بلند و باغ دعوے کرتے ہیں ہم آپ کے خادم، خدمتگار، عوام کے درد کو اپنے دل میں رکھنے والے، تو وہ خالی باتیں ہوتی ہیں؟ وہ صرف اور صرف الیکشن کے لیے ہوتا ہے، باقی کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی پھر الیکشن کا اعلان ہو جائے تو پھر یہ آ جائیں گے عوام میں؟ ہاں جی، پھر عوام میں آ جائیں گے، الیکشن کے بعد پھر کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔ عوام بھی تو ہر بار انہی امیدواروں کو آزماتی ہے، منتخب کرتی ہے، اسمبلی میں بھیجتی ہے، پھر 5 سال بعد دوبارہ منتخب کرتی ہے۔ جی، ہم عوام کی غلطی ہے کہ ہمیں چاہیے ہم ان کو ووٹ دیں جو نظام مصطفیٰ چلائیں، جی، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق نظام کو چلائیں، جی ہاں۔ باقی ہم یہود و نصارہ کے تحت چلیں گے تو پھر کبھی ہمارا نظام یا ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ جی آپ کے سامنے آ رہے وجن، کیا حال ہے آپ کے؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ ابھی ویلے پھر رہے ہیں۔ ویلے پھر رہے ہیں، کام شام آج تو خیر جمعہ ہے، یا ویسے بھی ویلے پھرتے ہیں؟ ویسے بھی ویلے پھر لیتے ہیں، جب کام ملتا ہے تو چلے جاتے ہیں۔ کام ملتا بھی ہے کہ ہفتے میں کتنے دن ملتا ہے کام؟ بس کبھی جو مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ کیا وجہ ہے، کام کیوں نہیں ملتا؟ بس آج کل بے روزگاری بہت ہوئی پڑی ہے۔ بے روزگاری زیادہ ہے، تو بے روزگاری زیادہ ہے تو آمدن بھی کم ہوگی آپ کی؟ ہاں تو بالکل بھی نہیں ہے، ہماری آمدن بالکل بھی نہیں ہے۔ زیادہ مشکل ہوگا؟ ہاں بالکل بہت مشکل ہے، ادھر روٹی کھانا عذاب ہویا پڑا ہے۔ سرکار کو کیا پیغام دیں گے؟ سرکار کو یہ کہیں گے اور کہ اچھا کوئی کاروبار ہو، کوئی اچھا بزنس نکالو، کوئی فیکٹریاں چالو کرو، تو پھر تو ہے، پھر تو مزہ ہے۔ جی جی جی، گزارش یہ ہے کہ مہنگائی ہے، بیچ کی بات کریں گے، بس بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہے۔ عوام پریشان ہے۔ جی ہاں، عوام پریشان ہے۔ یہ آپ کے سامنے گفتگو آ رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے جس سے عوام پریشان ہے۔ ہم ذرا ایک رکشہ ڈرائیور موجود ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ LPG سستی کی تھی، کوئی مارکیٹ میں بھی کم ہوئی ہے یا وہی 210 20 40 مل رہی ہے؟ ہاں یہی چل رہا ہے، یہی 170 روپے کلو کی تھی حکومت نے۔ 170۔ جی
यहाँ तो बस 220 चल रही है आज का रेट है। आज 220 चल रही है, तो फिर ये मतलब कि मुनाफा ज़्यादा लेना है ये आवाम से? ज़ाहिर वाली बात है, आप खुद ही कह रहे हो कि एक पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है। और मेरा जो है ना, सारी दुनिया के सारे इंसानों से एक पैगाम है, ठीक है ना, दुनिया के ऊपर जितने भी इंसान हैं सब के लिए एक पैगाम है कि अगर सब ने कामयाब होना है तो एक ही कलमा है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो ये शख्स पढ़ लेगा वो दुनिया के अंदर भी और आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा, और जो ये नहीं पढ़ेंगे और ऐसे ज़िंदगी गुजार कर चले जाएंगे, कल क़यामत के दिन वो भी ज़िंदा होंगे, सारे इंसान ज़िंदा होंगे, और जो है ना कलमा पढ़ने वाला कामयाब होगा। कामयाबी इसी में है और हम सबको इस पर अमल भी करना चाहिए। क्या हाल है आपके? क्या हाल है? बहुत बुरे हाल है यार क्यों, क्या हो गया? अल्लाह माफ़ करे, क्या हुआ है? बहुत महंगाई है, रिक्शा चलाते हैं, हर चीज़ महंगी हुई पड़ी है, आग लगी पड़ी है दुनिया में। महंगी हो गई है। आटा कितने का मिल रहा है? आटा 140 रुपये किलो मिल रहा है, बहुत महंगा है। 140 रुपए किलो। तो कितने किलो आटा लेते हैं आप? हमारा पूरे टाइम का 6 किलो आटा है। 6 किलो आटे के लिए तो आपको 1000 रुपये चाहिए। तो और क्या, बहुत कमाया ही नहीं जाता है इतनी, तो पूरे दिन में पेट्रोल भी महंगा हुआ पड़ा है, पेट्रोल पाते हैं इसलिए। अभी हमने पेट्रोल बढ़ाया नहीं है, आवाम का ख्याल था हमें। बढ़ाया गया है, 272 रुपये लीटर है। 62 रुपए यार। तो यार इतना महंगा हम क्या कमाएंगे? पेट्रोल जितना कमाते हैं वही सवारी बैठ जाए, पेट्रोल के पैसे मिलते हैं, हमारे को तो कुछ भी नहीं कोई मिलता, बचत नहीं हो रही। कोई बचत पहले नहीं, कमेटियां डाल लेते थे, कुछ बचत हो जाती, अब नहीं होती। अब नहीं होती। ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। हाँ, मुश्किल होते जा रहा है। हुकूमत क्या कर रही है? क्या कह रही है? कुछ भी नहीं कह रही, कह रहे हैं बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, यही ताने ला रहे हैं। हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। भाईजान क्या हाल है? अल्लाह का करम है भाई, सब्जी क्यों बहुत महंगी हो गई है? ज़ाहिर बात है, हर चीज़ महंगी है तो सब्ज़ी महंगी नहीं होगी। कितने में टमाटर सस्ता हुआ था? 80 रुपये किलो, प्याज? प्याज 50 रुपये किलो, आलू? आलू 100 रुपये आलू 100 पे चला गया। जी, और ये लीमू वगैरह क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, 40 रुपये पाव, 40 रुपये पाव। तो ये लहसुन वगैरह? लहसुन 80 रुपये पाव। तो कोई अब लगता है कि कुछ कीमतें डाउन होंगी या? जी हमने थोड़ी करनी है, ये तो गवर्नमेंट ने करनी है। क्या आपका क्या ख्याल है? आपको लगता है कि होंगी या नहीं होंगी, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये तो जब गवर्नमेंट का फैसला होगा जब ही होंगी ना, हम तो अपनी तरफ से ला के फ्री बांटते हुए हैं सामान। फ्री तो नहीं बांटना चाहिए, आप मेहनत करते हैं, आपका हक है मुनाफा कमाना। ये तो मीडिया को चाहिए ना कि एक्शन लें। हर तो एक्शन नहीं ले सकते, हम बता सकते हैं कि ये हालात हैं। हाँ, तो आप बेहतर समझते हैं हमारे से ज़्यादा। क्या लगता है अब हुकूमत के पास रह गया 1 महीना, वफाकी में उन्होंने अपना पेट भरना है, हमारा थोड़ी भरना है। खिदमत करते हैं आपकी। हमारे घर में तो कभी किसी ने आटा नहीं भिजवाया। आज़म कहते हैं मैंने फ्री दिया आटा, पता नहीं किसको दिया था सर जी, नहीं मिला। वो कहते हैं हमें तो कुछ नहीं मिला। जी आपने गुफ्तगू जानी और इसके जी आप जान लें कि लोगों के क्या रिएक्शन थे। हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे और मज़ीद भी लोगों से जानेंगे कि आवाम क्या कहती है। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, अपने अवाम की राय जानी, हुकूमत के हवाले से, हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से, और उसके साथ साथ जो बात अब डिस्कस हो रही है कि अब इलेक्शन की भी तैयारियां होनी हैं। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी अपने तमाम तरह उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का ऐलान किया है पंजाब में, और जिस सूरत हाल जा रही है, अवाम की क्या राय है, इस पर हम बात करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या समझते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल जा रही है वो अवाम के किस हद तक हक में है। यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह का फजल। अच्छा, अब इलेक्शन की बातें हो रही हैं, आज मुस्लिम लीग नून ने भी कहा है कि हम तमाम तरह उम्मीदवार पंजाब में लेके आएंगे, वज़ीर आज़म ने कहा कि 1 महीना रह गया है। क्या लगता है कि अब इलेक्शन होंगे, और अगर इलेक्शन होते हैं तो अवाम क्या कहना चाहिए, क्या मुतालबात होंगे? इलेक्शन होने चाहिए, दूसरे मुतालबात ये है कि महंगाई में कमी होनी चाहिए, महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए। 1 महीना है हुकूमत के पास, क्या मुतालबा करेंगे इस 1 महीने में, ऐसा क्या होना चाहिए कि अवाम को कुछ रिलीफ मिल सके? महंगाई को नीचे लाएं। हुकूमत महंगाई को नीचे ला सकती है, ला सकती है, आप कहते हैं कोशिश करें, कोशिश करें इंशाल्लाह। हम जरा आगे चलते हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक है सर, कैसे गुजरे हैं दिन आजकल? पहले से तो बेहतर ही है। गरीब आदमी रोटी बिल्कुल रज के खा रहा है, इतनी खा रहा है, बहुत ज़्यादा खा रहा है। पहले भूखा मरता था, अब रज के खा रहा है।
हाँ जी, बड़ी आप अच्छी बात कर रहे हैं, इतनी तब्दीली आ गई है। बहुत तब्दीली आ गई है। उम्मीद नहीं थी इस हुकूमत ने इतनी तब्दीली कर देनी है। हाँ जी, तो आप मुतमिन हैं? मुतमीन इतने के ताकि आने वाली नस्लें भी याद करेगी इस इनके लिए। ये आप इतना तंज करें हुकूमत पे, हाँ जी, मतलब कि नहीं कर रहा। गरीब आदमी एक नहीं रहेगा, कहते हैं ना गरीब एक नहीं बचेगा, वाकई गरीब एक नहीं रहेगा। आम आदमी मुश्किल में। मुश्किल फांसी के तख्ते पे चढ़ा हुआ है। अब 1 महीना रह गया हुकूमत के बाद, ऐसा क्या करे कि आवाम में कोई सुख का सांस मिले? मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा है इस गवर्नमेंट को, सरकारी बंदे जितने भी है ना, लाइन लगा के भून दे। यार वो तो खिदमत करते हैं, दिन रात काम करते हैं मैं वो। कह रहा हूँ बिल्कुल यही खिदमत तो कर रहे हैं। जब ये खिदमत नहीं करेंगे तो हम मरेंगे कैसे? आप इतने मायूस हैं इनसे? हाँ जी, इतने मायूस हैं। मैं कह रहा इनसे बेहतर है मौत आ जाए, वो ठीक है। आपके वज़ीर आज़म कहते हैं मैं आपका खादिम हूँ। हाँ जी बिल्कुल, ये खादम ही तो है, खादम ही तो है। इनका मतलब होता है खिदमतगार, खिदमत करने वाला। हाँ, ये खिदमत ही कर रहे हैं। हम इनका इतना का वो शुक्रिया अदा करें ना, जितना करें उतना थोड़ा है। ये आपने गुफ्तगू जानी, ये हुकूमत पर एक तंज़िया गुफ्तगू कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आवाम को काफ़ी मुश्किल में डाल दिया और खिदमत के जो दावे हैं वो खाली दावे हैं। आप सुनाएं, क्या हाल है जी आपके? अल्लाह पाक की रहमत है। वो चाचा जी कहते हैं हुकूमत इतना खिदमत की है कि जितना शुक्रिया अदा करें कम है, जीने के काबिल भी नहीं छोड़ा। तो क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसी बात है। देखो जो हुकूमत आती है हमारी खिदमत ही कर रही है, हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं उनकी बात। हम तो ये चाय पी होटलों पे चले गए, कारोबार वो नहीं है, बेरोजगारी हुई पड़ी है, बैठे हैं सुकून से, क्या करें? ये हुकूमतें जो बनती हैं उनका मेन काम होता है कि आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना, रोजगार देना। देखो कोई आसानी पैदा नहीं हुई। आपका हुकूमत ने 1 करोड़ नौकरियां की थी, इन्होंने भी कहा था कि हम महंगाई मुकाएंगे। किसने दी है? इन्होंने कौन सी महंगाई मुका दी है? मुकी है महंगाई? खाली बातें कर लेते हैं। बातें करते हैं। सन 75 से ये तो चलता आ रहा है। कहते हैं खजाना खाली होता है, हम क्या करें? 75 से ये आ रहा है। ये जो भी हुकूमत है ये हर हुकूमत काटने पे तुली हुई है, हर हुकूमत काटने पे। गरीब मरे जा रहा है, बस किसी ने सोचा गरीब के बारे में? इस बार हमें वोट दें, हम आपकी वो खिदमत करेंगे कि आप याद करेंगे। 10 रुपए चीज बढ़ा के 1 रुपया कम कर दिया, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। ऐसे ही करते हो ना, तो ये क्या कम कर दिया? 10 रुपए बढ़ाए, 1 रुपया नीचे कर दिया। 10 रुपए बढ़ाकर कभी 5 रुपए पे चीज लेके आए वो? मुल्क में खजाना खाली है, मुश्किल फैसले मजबूरी में करते हैं। क्यों लड़ रहे हैं ये उस डब्बे की खातर? खाली है ना डब्बा, क्यों लड़ रहे हैं उस डब्बे की खातर? खाली है डब्बा तो। किसी ने तो चलानी है हुकूमत। नहीं चल सकती है हुकूमत, कैसे चलेगी? सन 75 से नहीं चली हुकूमत तो। पहली हुकूमतें भी ऐसी थी। ऐसी थी, सब रोले गोले में चलता रहा काम। जो बंदा आया कहता मैं भर लूं पेट, मैं भर लूं पेट, मैं भर लूं। आवाम की नहीं खिदमत, कोई खाते नहीं है। शुरू से ही ऐसा हो रहा है। हम जरा आगे चलते हैं मजीद। क्या हाल है जी आपके? बस ठीक, शुक्र। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। आज जुम्मा छुट्टी मना रहे हैं। आज छुट्टी है। तो अब हुकूमत के बाद 1 महीना रह गया है। 14 अगस्त के बाद हुकूमत खत्म हो जानी है, असम्बलियाँ खत्म हो जानी है। हुकूमत ऐसा क्या करे 1 महीने में कि आप लोग हुकूमत से खुश हो जाएं? हुकूमत चाहे आसमान पे चढ़ जाए, चाहे ज़मीन में धंस जाए, कुछ भी नहीं होना 1 महीने के अंदर। जो साल से 1.5 साल से गैर तरीके से आई है, उन्होंने क्या करना है? कहते हैं हम तो आईनी तरीके से आए हैं। कोई आईनी तरीका नहीं है, कोई गैर आईनी तरीका था, जिसकी वजह से वो मुसल्लत हुए इन गरीब लोगों पे, हमारे पे, पाकिस्तान पे। वो कहते हैं हम मुल्क की मईशत को बचाने आए थे, डिफॉल्ट होने से बचाने आए थे। क्या बचाने? मैशियत तो और डूब गई। आप देख नहीं रहे, वो तो इतबार नहीं कर रहे IMF वाले। IMF ने डॉलर दे दिए, सऊदी अरब में दे दिए। तीन हिस्सों में डॉलर देने हैं, कोई नहीं दिए। और 3 हिस्सों में उनकी शर्त है कि वो 3 हिस्सों में देंगे। पहली निगरान हुकूमत को देंगे, अब जो बैठी है 1 महीने के लिए उनको देंगे, और जो आने वाली हुकूमत होगी उनको देंगे। वो कहते हैं आप इतबार करना लोग शुरू हो गए हैं ना हम पे। इतबार ये हाजी साहब हो गए हैं, ये हाजी साहब हो गए हैं। कहते हैं अब हमने इतमाद बहाल किया है। 2-3 बंदे हज पे चले जाएं, उससे ये तो नहीं है कि हुकूमत है ना इतबार करने लग जाए। कोई इतबार नहीं है, हमें इतबार नहीं है, तो IMF वालों को क्या इतबार होगा? कहते हैं हमें इतबार नहीं। आप क्या कहते हैं, हुकूमत ने कैसी खिदमत की आप लोगों की? कोई खिदमत नहीं की। वो सुबह शाम के ज़्यादा हम कहते हैं मैं पैसे मांग मांग के थक गया हूँ। आप कहते हैं सब आते हैं अपना पेट भर के जाते, कोई भी नहीं जाता, कोई गरीब। 1 रुपया भी नहीं खाया मैंने। कौन कहता है? वज़ीर आज़म कहते हैं। सारे ऐसे कहते हैं, जो आएगा कुर्सी पे वो यही कहेगा मैंने नहीं खाया है। बगैर खाए हुए आते हैं, आप पैसों के बगैर यहाँ खड़े अपनी जॉब कर रहे हैं। मैं तो तनख्वाह लेता हूँ। तनख्वाह ले रहे हैं ना, तो वो भी तनख्वाह लेते हैं, वो तनख्वाह डबल लेते हैं। तनख्वाह तो लें, तनख्वाह तो हक बनता है, जो मेहनत करें तो उसके। मेहनत के नहीं लेते ना, मेहनत के करें तो फिर ये साइकिलों पर आए, ये साइकिलों पर आए। बाहर के मुल्कों की रोटियाँ नहीं आती, वज़ीर आज़म नहीं आते साइकिलों के ऊपर।
सिक्योरिटी के मसले हैं ना, यहाँ पे जान भी तो बचानी है। तो जान फिर बचेगी ना मेरी, अगर मैं बेईमानी नहीं करूंगा। जब मेरे में अंदर होएगा करप्शन तो मुझे डर होगा अपनी जान का। तो आप कौन ऐसा है जो कि मुल्क को संभाले? अब इलेक्शन हो जाए तो क्या इधर कुछ भी नहीं हो सकता है, बस इधर अल्लाह ही हाफिज है। मायूसी क्यों है? मायूसी इन्होंने कर दिया ना अवाम को, छीन लिए सब कुछ, तो छीन लिया, अभी भी मायूस ना होए। नहीं, आप रोजगार के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप लैपटॉप दिए हैं, आप लोगों को, नौजवानों को दे रहे हैं, उसके अलावा नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए, सब बकवास है ये सारी बातें। हाँ जी, ये अपने इलाके में अपने मेंबरों को दिए सिर्फ, बाकी छोटे पैमाने पे किसी को नहीं दिए हैं, पर सब झूठ है ये। क्या हाल है जी आपके? इस्लामी जमात। इस्लामी जमात कहाँ से आएगी? इस्लामी कानून नाफज हो इस मुल्क के अंदर। मौलाना साहब को ले आए? भाई कोई भी हो, इस्लामी कानून हो। वो तो मैं तो वही बात कर रहा हूँ, इस तो वक्त ये मुल्क जब बचेगा तब, वरना जो ये आइन नहीं बचेगा। हमारा जो आइन है वो इस्लामी आइन है, इस्लाम के मुकम्मल असूलों के मुताबिक हमारे आइन को बनाया गया है, उसमें कोई गैर इस्लामी शिक्के नहीं है। हाँ, पर है ना, सूद ले रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। जब वो निज़ाम आ जाएगा, कोई सूद वाला निज़ाम नहीं होगा। कौन लाएगा निज़ाम? वो देखो अवाम में कोई शऊर आ जावे। कब आएगा? अब धक्के तो बहुत खा लिए हैं। हाँ, अवाम रोटी को तरस रही है अवाम, सही बात पूछे तो। अब मैं आटे के लिए गया था, अब 1300 रुपये गट्टू लूंगा, वहाँ से नहीं मिला मेरे को। क्या कहते हैं? बस ये हमारा यही मुतालबा है, यहाँ कानून नाफिज हो, इस्लामी कानून नाफिज हो, बात। 14 अगस्त को हुकूमत खत्म हो जानी है, वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमारी असम्बलियाँ खत्म हो जाएंगी, फिर निगरान हुकूमत आएगी। तो क्या लगता है, एक आधा महीना रह गया, क्या करे हुकूमत के, आप लोग भी खुश हो जाएं, आवाम भी खुश हो जाए? नहीं जी, हमें ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए, ये सब चाहिए कौन? बाईकाट। फिर सियासतदान नहीं आएंगे तो फिर कौन? आसमान से लोग आएंगे? कानून नाफिज करो। कौन ऐसा है जो मुल्क संभाले? अभी भी हुकूमत कह रही है हमने मेहनत की है, मुल्क को ट्रैक पे ले आए हैं, आप लोगों की हालत बदल जाएगी, सब्र कर लें थोड़ा सा। सन 1947 से लेकर आज तक हमें तो कोई तब्दीली नजर नहीं आई। जैसे नुमाइंदे चुने हैं वही गए ना, कोई बाहर से तो नहीं है? हमें तो कोई भी तब्दीली नजर नहीं आई, उल्टा महंगाई। नुमाइंदे जो चुनते हैं वही बनते हैं ना, नुमाइंदे से ही चुने फिर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। हमें खुद ठीक होना है। हमें अगर हम अपने घर को ठीक करेंगे ना तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जब हम अपने घर को ठीक, अभी मेरे 2 बेटे हैं, वो 2 बेटे ही मेरे काबू में नहीं आ रहे, तो मेरे डबल फाटक की अवाम को क्या संभालना है? इसी तरह मुल्क भी इसी तरह है, जब ये खुद चोर डाकू लुटेरे इकट्ठे हुए हैं, वो कहते हैं हम खिदमतगार हैं आपके, किसने कहा हम चोर हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी खिदमत की है। पहले 130 रुपये आटा, 20 रुपये आटा था, अभी 150 रुपये आटा हो गया। मेट्रो बनाई है, सड़कें बनाई हैं, मोटरवे बनाई है, मेट्रो बनाई, मोटरवे बनाई, सड़कें बनाई। 1 अरब 20 लाख रुपए डॉलर मिला है इन्हों को, वो कहाँ गया? वो सिर्फ टीवी पे दिखा दिया कि जितना मिला है, अगर वो मिला है तो फिर आटा सस्ता करो भाई, चीनी सस्ती करो। आगे 100 रुपये चीनी थी, अभी 100, जब से डॉलर मिला 130 होगी। ये भाई पाकिस्तान जो है ना, ये अपने कर्म पे नहीं चला, ये अल्लाह के कर्म से चल रहा है। हम जरा आगे भी बात करते हैं। सुनाएं, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है जी भाईजान। कैसी लगी हुकूमत? तो पहली हुकूमत ने तो कहा था जी हम कपड़े बेच के आटा पूरा करेंगे। जब आटे की बात आई तो यहाँ पे फ्री आटा दिया है। दिया तो है ना? दिया है बिल्कुल, जो जिनके हाथों में दिया है। मेरे को 1 गट्टू दिया उन्होंने। ये क्या, कौन कहा गया? कौन कहा गया? ये हुकूमत के जो चमचे कच्चे हैं ना, ये सब कहा गए हैं। जो बड़ा बैठा हुआ ना, वो ध्यान नहीं दे रहा, किसी बात पे नहीं दे रहा। ये मुल्क से ला रहे हैं, इमदाद ला रहे हैं, ये हम गरीबों का ख्याल करेंगे। क्या ख्याल करें? चमचे खर्चे असल फसाद की जा रहे हैं जी। जो नीचे वालों को, तबके को, जो उनके बैठे हुए हैं, ठीक है ना, वहाँ चमचों को सही करेंगे ना, सब निजाम सही हो जाएगा। गरीब मर रहे हैं, वो कह दिया जी हम इनको देंगे, अल्लाह जाने क्या देते हैं क्या नहीं। वो गरीबों को तो दिया नहीं, वोट हमसे लेते हैं, सामने आ जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं जी वो जी पिछले वाला सब कुछ कर गया, ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है इस मुल्क का। वो कहते हैं मैं एक गरीब नहीं रहने दूंगा। ये आया कहने लगा मैं कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा। वो क्या खाक सस्ता किया? अभी तुम्हारे कितने महीने इन्होंने हुकूमत कर ली है, इनसे नहीं संभली गई, तुम पीछे हट जाओ, किसी नए को लाओ। तो जाने वाली है, अब तो 1 महीना रह गया है, क्या लगता है 1 महीने में पेट भर लिया है? जा रहे हैं ना, ये पेट भर लिया है। हाँ जी,
बिजली महंगी, आटा महंगा, सब चीज महंगी। खिदमत की है आपकी, खिदमत खाक की है। हम गधा लेडी चलाते हैं, धूप में मरते हैं। हमारा क्या सहूलत दी है इन्होंने? और बिजली का बिल 1100-1200, एक पक्का, एक टीवी, ये चलता है। जब बल्ब जलता है, इतना बिल बढ़ा दिया क्या जी? हाँ, हमारे को घाटा पड़ गया है। क्या बाहर मुल्क से इमदाद आई है सर? बाहर मुल्क से इमदाद आई है इनके पास, और वो खुद वो आई है, तो ये क्या कर रहे हैं? ये आपने गुफ्तगू जानी, वो ये कहते हैं कि कहा था कि हम कपड़े बेचेंगे, आटा सस्ता करेंगे, लेकिन आटा 150 रुपए किलो हो गया है। तो ये आम लोग क्या करें? इनके दिल में खौफ नहीं है गरीब के लिए। कहते हैं हम गरीबों के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ भी नहीं कर रहे। ये आपने गुफ्तगू जानी और लोगों का रिएक्शन आपके सामने है। वो ये कहते हैं हुकूमतों ने हमारी खिदमत नहीं की, बल्कि आवाम की खिदमत करने के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ बनाया है। आवाम से टैक्सेस लिए हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं दिया। आटा 150 रुपए किलो तक पहुंच गया, चीनी 130 रुपए किलो पहुंच गई, उसके साथ साथ घी है वो 500 और पैसे ज़ायद फी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तियाब है। और उसके साथ साथ बिजली के बिल हैं कि वो कम होने का नाम नहीं ले। सुई गैस को महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, ट्रांसपोर्ट महंगी है। तो फिर सस्ती क्या चीज़ है जो आम आदमी उसको इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को बेहतर बनाए? ये सारी चीज़ें अब लोगों के चेहरों पर, लोगों की गुफ्तगू से, लोगों के जज्बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आवाम इस महंगाई के हाथों और हमारी हुकूमतों की जो पॉलिसियां हैं, जो कि आवाम दोस्त हमेशा नहीं रहती, चाहे जो भी हुकूमत आए, उसकी वजह से कितने तंग हैं। हम इस पर मजीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम गुफ्तगू कर रहे हैं और आपने अवाम की गुफ्तगू जानी, लोग किस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं महंगाई की वजह से। हुकूमत ने जब जो मौजूदा हुकूमत है, जब अदम एतमाद के बाद हुकूमत संभाली तो दावा किया गया था कि हम मईशत को मजबूत करेंगे, हम आम आदमी को रिलीफ देंगे, हम आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। अब हुकूमत के पास 1 महीना रह गया है, तो इसमें क्या कर सकती है हुकूमत? पहली गुफ्तगू जान ली, हम जरा मज़ीद लोगों से जानते हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक है भाई, कैसे चल रहे हैं हाल चाल? जी बड़ा खराब चल रहे हैं, खराब चल रहे हैं आजकल। क्यों ऐसा क्या हुआ है कि हालात खराब चल रहे हैं? मजदूरी तो 800 रुपये मजदूर की है, अगर महंगाई इतनी है कि हद से ज़्यादा घर बच्चों को पेट नहीं पलता। हमने कोशिश की है आपके लिए आसानियां हों, लेकिन क्या करें, खजाने में था कुछ नहीं, मुआहदे पिछली हुकूमत ने खराब कर दिए, तो क्या करते, मजबूरी थी। अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा जी? 160 रुपये किलो आटा होया खड़ा है, 600 रुपये किलो घी होया खड़ा है। अब जो बंदा मकान का किराया भरे, बिल भरे, 6,000 5,000 बिल आ जाते हैं, वो कहाँ? मौका दें, इलेक्शन के बाद हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, अभी टाइम कम था। ये तो इन्होंने पहले भी क्या रखा जी हम करेंगे, मगर ये अपने पेट भरते, गरीबों को नहीं भरते। तनख्वाह लोगों की बढ़ गई, ये भी मजदूर है उसके लिए क्या इन्होंने करा? आज़म कहते हैं कि 1 रुपए की करप्शन साबित हो जाए तो मुझे लटका दें, मैंने कोई करप्शन नहीं की। अगर ये जो बाहर से आता है, इमदाद आती है, पैसा आता है, ये कहाँ जाता है? ये अगर वो पे लगता है, अवाम पे कहाँ लगता है? अवाम पे तो सिर्फ महंगाई लगती है और तो कुछ नहीं लगता, पैसा नहीं लगता, महंगाई लगती है अवाम के ऊपर। आप बताएं। वालेकुम सलाम। खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह, हमें बहुत उम्मीद है इस पार्टी के साथ, क्योंकि ये गरीबों की पार्टी है। बहुत उम्मीद है पार्टी की बात करें, नून लीग के साथ जो है ना, पहले यू टर्न वाली पार्टियों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। ये जो जगह जगह मुआहदे इन्होंने किए हुए वो किए रहे, अब उन्होंने हुकूमत लिए भी 2 से 3 माह ही हुए हैं। इंशाल्लाह हमें 3 माह कहाँ हुए यार, 1 साल 1.25 साल हो गए यार। हमें बहुत उम्मीद है नून लीग वालों से। इंशाल्लाह 1 महीना रह गया आपकी हुकूमत में, आपकी पसंदीदा जमात की हुकूमत में, तो क्या लगता है एक महीने में ऐसा क्या करे कि जो ये आवाम है इनके चेहरों पर कोई खुशी आ जाए? खान साहब देखो कि महीने के अंदर तो जो है ना, या साल में पूरा मुल्क नहीं सुबह, कितना टाइम चाहिए? तकरीबन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 1 साल के अंदर अंदर हम ये जो गरीब आवाम की सहूलियात है, हर चीज को पूरा। साल के लिए तो फिर इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन में तो फिर 5 साल चाहिए। नहीं, इंशाल्लाह इलेक्शन भी जो है ना 3 से 4 माह बाद अल्लाह ने चाहा, वही ना, फिर 5 साल का टाइम पीरियड मिलेगा ना अगर जीत के आए तो। इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है इस पार्टी से कि गरीब की पार्टी है ये, और गरीबों की पार्टी है। भाईजान नून लीग गरीबों की पार्टी है, खिदमत के लिए तैयार है। भाई कहते हैं वाकई तैयार है? हाँ जी तैयार हैं जी। क्या उम्मीदें हैं आपको? अभी तो फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है, शायद अगर कोई अच्छा हमारे लिए हो जाए तो। कैसे होगा अच्छा? अभी उम्मीद नहीं है तो बाद में उम्मीद नहीं बन जाए। तो भाई साहब ने कहा ना, अभी इमदाद आती है पर जाती कहाँ? आपने कहा जी वो गरीबों में लगती है।
میں نے نہیں کہا وہ کہتے ہیں, میں ان کی بات بتائی کہ حکومت کہتی ہے کہ ہم خرچ کرتے ہیں عوام پہ. وہ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں, 5 روپے وہ وصول کر لیتے ہیں. کبھی یہ چیز مہنگی, کبھی وہ چیز مہنگی, کبھی وہ چیز مہنگی. ہر دن صبح گھر سے باہر نکلو, کچھ نہ کچھ مہنگا, کچھ نہ کچھ مہنگا. یہ جو چیزیں ہیں نا مہنگی ہونے والی, یہ ڈالر نہیں تھے ہمارے پاس, اب آ گئے ہیں ڈالر, اب چیزیں کچھ ہو جائیں گی بہتر. تو تھوڑا سا صبر کر لیں, مشکل ٹائم ہم نے گزار لیا ہے, ملک ٹریک پہ پٹری پہ چل گیا. اب مزید کتنا ٹائم چاہیے انہیں؟ کچھ ٹائم چاہیے, کچھ کا انہوں نے نہیں بتایا, 1 ماہ 5 مہینے کچھ ٹائم کا ہے انہوں نے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, کوئی سی بات نہیں ہے کہ جہاں اتنا وقت گزارا میں تھوڑا اور گزار لیں گے, پر مہربانی کریں ان سے, یعنی کہ بے شک چاہے کچھ نہ بھی دیں, یہ صرف یہ مہنگائی کم کر دیں. مہنگائی کم کر دیں, بے شک کچھ ٹائم لے لیں لیکن مہنگائی کم. کیا حال ہے جی آپ کے؟ شکر ہے سر. عام آدمی سے جب بھی بات کرتے ہیں عام آدمی پریشان نظر آتا ہے, مایوس نظر آتا ہے, حکومت کو کوستا ہوا نظر آتا ہے. آپ کے دل میں کوئی امید ہے کہ کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں؟ سر وہ امید شروع ہوتی ہے تو فوری طور پہ الیکشن کی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں. ملک کے بارے تو کوئی نہیں سوچتا نا. اگر یہی حال رہا تو کام خراب رہے گا. اگر جیسے اس کو چانس ملے, اب 15 مہینے سے یہ لگا ہوا ہے, ابھی مثلا IMF سے بھی معاہدہ ہو گیا, عرب ممالک بھی پیسہ دے رہا ہے, اور اب اگر یہی سلسلہ سال 1.5 سال 2 سال چلتا ہے, الیکشن کوئی ضروری نہیں, عوام کو دیکھا جائے. کہ الیکشن بے شک سال لیٹ کر لیں لیکن ملک کو سنبھالیں. ملک کو سنبھالیں, ملک کو دیکھو نا کہاں تک لے گئے. الیکشنوں پہ اربوں روپے خرچ کرتے ہیں. اگر یہی اپنے عوام پہ خرچ کریں, اس کو ٹائم دیں, جو موجودہ ہے اس نے جو بنایا شیڈول, اس شیڈول سے اگر ڈالر نیچے آتا ہے تو ظاہر ہے عوام کو سہولت ملے گی. الیکشن آپ کہتے ہیں حل نہیں ہے اس وقت؟ اس کا حل الیکشن نہیں ہے بھائی, کہتے ہیں الیکشن اس کا حل نہیں ہے. ہم ذرا آگے چلتے ہیں. کیا حال ہے جی آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے بھائی. آج بات کر رہے ہیں حکومت کے بارے میں. حکومت کے پاس رہ گیا 1 مہینہ, 13 اگست 14 اگست کو حکومت ہو جائے گی ختم, پھر آ جائے گی نگران. تو کیا کرے حکومت 1 مہینے میں کہ عوام کو سکھ کا سانس لے لے اور حالات بہتر عوام کے ہو جائیں, کچھ کیا کرے؟ میرے بھائی بات یہ ہے کہ آج سے نہیں یہ نظام چل رہا, ایوب خان کے دور سے چل رہا ہے. اس نے بھی 1 روپیہ 2.5 آنے کلو آٹا بیچا ہے. یہاں کوئی اچھا آدمی آ جائے تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ لوگ عوام, کیونکہ جیسے جیسے عوام بڑھ رہی ہے ویسے ویسے مسائل بڑھ رہے ہیں. آبادی کا تناسب اتنا ہو گیا کہ آج ٹانگے گھوڑے نہیں رہے ہیں, آج جون ہے نا نیچے انجن آ گیا ہے. کیونکہ جیسے آپ وسائل, اور پہلے دال روٹی سے بھی گزارا چل جاتا تھا, آج ہر آدمی مرغم چیزیں کھانے کی وہ صداد کرتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ایک زندگی کو گزاریں, ایسے گزاریں کہ سادگی کے ساتھ. اب آپ کو میں نے دیکھ لیا, مجھے آپ نے دیکھ لیا, یہ اس کے نیچے بائک ہے تو میرے نیچے بھی بائک ہونی چاہیے. تو ہمیں خود بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پہلے اپنے آپ کو, حکومتوں کو ہم کیا کہیں, وہ تو ایک مورے ہوتے ہیں, وہ کسی کے کہنے پر آ جاتے ہیں پھر وہ چلے جاتے ہیں. عوام کے ووٹ نہیں ہوتے. عوام کا ووٹ لے کر آیا, کوئی آیا ہے شریف آدمی کوئی آیا آج تک؟ یہاں سے الیکشن ہوا تھا, شاہ محمود جیتا تھا, اس کے علاوہ یوسف رضا گیلانی جیتے, رانا محمود الحسن جیتے, تو وہ کہتے ہیں ہم تو ووٹ لے کے آئے نا. ہاں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, یہ ووٹ کا ٹھیک ہے, لوگ بھی مدد کرتے ہیں, ان کی ہیلپ کرتے ہیں. پھر وہ کیا ہوتے ہیں کہ ہم ان کا دروازہ کھڑکاتے ہیں, وہ ملتے نہیں ہیں ہمیں. اور جناب اللہ ان کے جون تھا نا, جا کر دروازوں کو کوئی منشی مل جاتا, کوئی چمچے خرچے بھی نہیں ملتے. ہاں ملتے, وہ پھر وہ وہاں تک کی حد تک ہوتے ہیں جہاں تک جون تھا نا آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے. مثلا کہ ان سے وہ محبت کرنا, عوام کی دادرسی نہیں ہوتی. نہ عوام کی دادرسی کس دور میں نہیں ہوئی, 65 سے لے کر آج تک کوئی دادرسی ہوئی ہے. بھٹو صاحب کا بڑا سہانا دور تھا. یہ جو پل ہے نا یہ بعد میں بنا تھا, یہاں پر پہلے ٹانگے گھوڑے چلتے تھے. ہاں یہاں چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوا کرتی تھی, چند لوگ ٹانگے گھوڑے والے چائے پیتے تھے یہاں بیٹھ کر. اور وہ دور اب نہیں ہے بھائی. یہ ہماری آبادی کا تناسب کہاں مظفر آباد تک چلا گیا ہے, ملتان کہاں تک پھیل گیا ہے. اسی طرح جیسے جیسے ہم خود جونسن اس کے ذمہ وار ہیں مہنگائی شنگائی کے. ہمیں خود بھی اپنے آپ کو بدلنا ہوگا, اپنے جو طریقہ کار ہیں, اپنا رہن سہن ہے, اس کو بدلنا ہوگا. ہر چیز حکومت کی جیب میں ڈالیں گے تو لازمی بات ہے پھر وہ مسائل حل نہیں ہوں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو بھی سوچنا چاہیے. آپ سنائیں کیا حال ہیں آپ کے؟ گرمی کیسی ہے ملتان کی؟ بہت زبردست گرمی. آج بارش کا بھی امکان ہے. ہوئے گا, بارش ہو جائے تو بہتر ہو جائے گا. بہتر. حالات کیسے چل رہے ہیں؟ شکر ہے مالک کا, جو ٹائم گزر رہا ہے. جو ٹائم گزر جائے شکر ہے, بے شک شکر ادا کرنا چاہیے. کیسا گزرا ہے ٹائم؟ اچھا گزر رہا ہے. اچھا گزرا ہے. مہنگائی کچھ کم ہوئی ہے؟ مہنگائی سر, مہنگائی نے تو روز بڑھ رہی ہے, کم نہیں ہو رہی. کوئی آمدن بڑھ گئی ہے؟ آمدنی وہیں کھڑی ہے, مینج ہو رہا ہے سارا کچھ؟ بس شکر ہے مالک کا, گزارا ہو رہا ہے, گزارا چل رہا ہے. حکومت کیا کرے آپ کے لیے, عوام کے لیے؟ حکومت کو یہی چاہیے کہ بس غریب کو سپورٹ ملے, کوئی اچھی آمدنی ملے, کوئی دیہڑی کو ان کو فائدہ بھی ہو. اگر 700-800 کمانے والا اس کا گھر کا 1000 روپے کا خرچہ ہو, وہ 700-800 سے گزارا تو نہیں کرے گا نا.
बस ये हुकूमत को चाहिए थोड़ा ख्याल करे बस। हुकूमत को चाहिए कि ख्याल करे अवाम का, इस महंगाई के दौर में अवाम किस तरह से अपने हालात को मैनेज करे। जी आपके सामने गुफ्तगू आ रही है, हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि बाकी अवाम क्या कहती है। लोगों से जो हमने बात की तो लोग कुछ ज़्यादा मुतमिन दिखाई नहीं देते। हम रोज़ाना बात करें तो हम ज़रा इस होटल पर चलते हैं, यहाँ पर भी लोग बैठे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं और उनके कैसे गुजरे हैं हालात। ये हमें बुला भी रहे हैं, हम इनके पास जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहे हैं हालात? हालात आपको नहीं पता न्याज़ी साहब? अंदाजा तो है, लेकिन हुकूमत कह रही है कि अब हमारा मुआहदा हो गया है, डॉलर आ गए हैं, दोस्त ममालिक ने भी पैसे दे दिए, अब बेहतर हो जाएंगे हालात। बड़ी मेहरबानी है दोस्तों की जो उन्होंने मदद कर दी है, लेकिन ये खुद अपनी मदद आप क्यों नहीं करते? मैं खादिम हूँ, आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ। खादिम कपड़े फाड़ के मैं आटा दूंगा, कहा था ना? आटा दिया था। कहा कब आटा दिया था? मैंने मुफ्त दिया था। कितने मर गए, कितनी औरतें मर गईं हैं जी? अब आटा तो मिलता ही नहीं है कहीं पर। कितने रुपए का किलो हो गया? यूटिलिटी स्टोर के ऊपर आटे का, घी का, चीनी का नामो निशान नहीं है, सारे खाली पड़े हैं स्टोर। खाली पड़े हैं। मार्केट में कैसे मिल रहा है? मार्केट में तो कपड़े उतर रहे हैं। हाँ, अब रह गया 1 महीना हुकूमत के पास। कल वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि 14 अगस्त तक हमारी असम्बलियाँ हो जाएंगी खत्म, तो 1 महीने में कोई उम्मीद है कुछ कर लेगी हुकूमत? सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत करे कुछ या ना करे। हुकूमत अब अगर आएगी नून लीग की या पीपल पार्टी की तो वोटों पर ही आएगी, हैं? वोट कौन देंगे? अवाम देगी, वो कहते हैं। अवाम तो भूखी मर रही है। राना सनोला अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसने कहा है कि पंजाब में हर हलके से मैं अपना उम्मीदवार खड़ा करूंगा, अवाम हमारे साथ है। अवाम इनके साथ कहाँ है भाई? अवाम अपने पेट के साथ है, वो पेट की रोटी पूरी नहीं होती है। मौका कम मिला, 5 साल दे हमें, आपकी भरपूर खिदमत करेंगे। आप इस वक्त ये देखो कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट मुलाजिम कितने हैं? लाखों में है ना। उनकी 35% तनख्वाह बढ़ी है। वो भी एहतजाज कर रहे हैं, वैसे पंजाब में एहतजाज चल रहा है, लाहौर में वो तो चल रहा है ना। अब तीनों चारों सूबों ने 35% पेंशन बढ़ाई है। पंजाब ने कितनी बढ़ाई है? 20% तक थी या 10%? 5%। 20% तो खजाना खाली है हमारा भाई है। पंजाब के मुलाजिम जाते हैं ना, हमने बजट मैनेज करना है। अब पैसा अगर पेंशनों में लगा देंगे, तनख्वाहों में लगा देंगे, तो फिर अवाम को क्या देंगे? तनख्वाह तो 35% बढ़ा दी है, तो पेंशन वाले भूखे मरेंगे। वो इनको वोट देंगे? मुश्किल है, इलेक्शन हुआ तो इनको वोट मिलना मुश्किल है। पेंशनर तो इनको नहीं देते। जो स्कूल के टीचर हैं वो हड़ताल पे बैठे हैं, वो तनख्वाहों पे गुजारा ही नहीं होता, तो वो क्या वोट देने जाएंगे इनको? के लिए मुश्किल होगा। जी आप बताइएगा, सुनाएं कैसे चल रहे हैं काम काज? बस जी ऐसे ही है जी। पाकिस्तान में आपको पता है महंगाई हुई हुई है, आटा मिल नहीं रहा, बिजली के बिल जो है कहाँ चले गए आपके सामने ही है। जितना कमाते हैं बिजली के बिल में दे देते हैं। थोड़ा सा सब्र कर लें, हालात बेहतर होने लगे हैं, मईशत को ट्रैक पे ले आए हैं, अब अल्लाह करेगा आवाम को भी रिलीफ देंगे। जो डॉलर आते हैं वो जाते गए, आवाम ये सवाल करिए, जो डॉलर आते हैं कर्जों पे जाते हैं और आवाम की खिदमत पे जाते हैं। तो पाकिस्तान की ज़राअत को बढ़ाएं ना, वहाँ से ना लें। ज़राअत को बढ़ा तो रहे हैं आप? कुछ भी नहीं बढ़ाया, अपनी मुल्क को देखें, अपने मुल्क की जो है ज़राअत को बढ़ाएं, ज़रूरत नहीं हमें लेने की। उन्होंने ज़राअत के लिए काम शुरू कर दिया ना, वो नेशनल पॉलिसी भी बन रही है। हमारी अफवाज भी अब कोशिश कर रही हैं कि ज़राअत पर फोकस करें। बैंकों से लोग पैसे निकाल लेते हैं अकाउंटों में से, कोई पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान में, सेफ्टी नहीं है, अकाउंट सेफ नहीं है, क्या करो बताओ पाकिस्तान के अंदर? कुछ सब्र कर लें, हालात बेहतर हो जाएंगे। नहीं अल्लाह ताला हो जाए, लेकिन आवाम बहुत परेशान है। अब 1 महीना रह गया है, क्या करे सरकार? 1 महीना आटा दिया उसने, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मार्केट से आटा गायब है। जो 680 का मिलता था लैंड में, चलो जाके गरीब आदमी ले लेता था, वो मिलता ही नहीं है। अच्छा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, वो इनके अपने बंदों को मिलती है। सर्वे करते हैं, कहते हैं जी आप कैंट में रहते हैं, आप गुलगश रहते हैं, आप फलाना रहते हैं। गुलगश का जो कबूतर आपकी दुकान पे आ जाए तो आप उसे दाना नहीं डालेंगे कि अभी गुलगश से आया नहीं, इसको रहने दो, जो कुम्हार मंडी से है उसको दे दो। कोई पॉलिसी नहीं है। आप बिजली के बिल हैं, आप उनके यूनिट देख लें, जून में जो यूनिट है ना, जून के यूनिट, वो आप देख लें, जिसके 100 यूनिट से कम आते हैं उन सब पे लगा लें। जब वो एसी नहीं चलाता इसका मतलब 100 यूनिट उसके आ रहे हैं, तो आप उसको नहीं काउंट करते। पॉलिसी नहीं है, मनपसंद
5,000 यूनिट का बिल आया है, 5,000 यूनिट का बिल आया है, वो अम्मा पैसे ले रही है। जिसका 100 यूनिट का बिल है वो नाहल है। ये तो हमारे हमेशा से रहा है कि जो लोग डिजर्विंग होते हैं उनको नहीं, ऐसी पॉलिसी बनाए जो गरीब तक पहुँचाए, सही पॉलिसी बनाए, इनके अपने बंदों को ना लें। बंदों को न्याजी साहब, ये सेहत कार्ड है किसके लिए? गरीबों के लिए बना। ये दिखाओ जी, ये राणा आई क्लिनिक दिखाओ जरा। मेरा फार्म बन गया, टेस्ट हो गए, फीस भी ले ली, फार्म बना के सब कुछ मेरा, वो गारंटर भी मेरा बेटा बन गया। आपके जुम्मे के दिन आपका ऑपरेशन होगा, जुम्मे के दिन बैठा रहा जी, आपका हफ्ते को होगा, इतवार को होगा। वो जी अब आपका नहीं होगा, आप टेस्ट करवाएं, 2,000 फीस दें, दोबारा टेस्ट करवाएं, चेक करवाएं, फिर आपका ऑपरेशन होगा। अब वो ना मेरे कागज दे रहे हैं वापस, ना मेरा ऑपरेशन कर रहे हैं। जिसका यहाँ दाल लगता है वो लगाता है और आवाम की जेब खाली करता है। वो रुपए, ये पहले ऐसे नहीं था, आई क्लिनिक ऐसा नहीं था पहले, देखो तो सही राणा, ये लश पश हो गया है। ये हमारे जैसे पैसे भी ले लिए वहाँ गवर्नमेंट से, ऑपरेशन भी नहीं किया। आपने गुफ्तगू जानी, वो ये कहते हैं कि अवाम के लिए कुछ नहीं होता और हुकूमतें अपनी आसाइशों के लिए सारा कुछ करती हैं। जी आपके सामने जो आम लोगों की गुफ्तगू थी, हमने कोशिश की कि अवाम की बात आप तक पहुंचा सकें। हुकूमत के पास अब टाइम तो यकीनन कम है, इसमें रिलीफ के ऐलानात तो अब कम ही किए जा सकते हैं, किए जाएंगे तो वो इलेक्शन कैंपेन के इल्ज़ामात की ज़्यादा महंगे। लेकिन लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि अब अगर मईशत को संभाला मिल ही गया, इमदाद मिलकर, कर्जा मिलकर, तो कुछ अवाम का भी ख्याल कर लें, कुछ अवाम के लिए भी बजट निकालें ताकि अवाम भी कोई सुख का सांस ले सके। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।